Hey all you awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I will be sharing my experiences of flying with celebrities, famous personalities. So yes, I was a cabin crew. I have worked as a cabin crew for a good 6 years with Jet Airways. So because of my job, I got the opportunity to come across a lot of famous people. So I thought, why not to make a video about it? I've seen a lot of these videos on YouTube where cabin crew are rating celebrities they have flown with. I will not be rating them, but I will just share my experiences of flying with them, whether it was good, bad, and so I will share all of that with you. So yeah, I would say grab a snack because my video will be long as usual. So yeah, if you guys are excited and if you want to know, keep on watching. So, before I start sharing stories with you all, I would like to inform you that I have made over 100 videos related to cabin crew, which are there on my channel. And why am I telling you this? Because there are a lot of people who message me, who request me to, make a bit video about a particular topic, but I have already made it and it is already there on my channel. So I would request you to go on my channel and go on that playlist section. There you will find three playlists. So first one is cabin crew, second one is Q&A all about cabin crew, and the third one is story time. There you will find all the videos I have made till now about cabin crew. So yeah, I hope that you will get answers to all your queries. And still, if you have more queries, if you have more requests, you can drop down in the comment section below. I will definitely try to make a video about it. And yeah, this was a small thing which I want to share with you all because बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ. तो या ये हो गई थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली बात, और अब आते हैं काम की बात पे. मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचार करके याद करके किया, किसके साथ फ्लाई किया करके मैंने लिस्ट बनाई है. हियर इज़ अ लिस्ट. ओके, मेरी प्यारी पुरानी डायरी जिस पे मैं सारे आइडियाज़ लिखती हूँ अपने वीडियोस के, और नोट्स बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. सो आई एम गोना रीड थ्रू दिस. सो सबसे पहले सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने फ्लाई किया है उनका नाम है गिरीश कर्नाड. इफ़ यू हैव सीन मालगुडी डेज, if you have not seen Malgudi Days, I don't know what to tell you. So he was there, so I remembered him from there कि वो Malgudi Days में थे. Also उनका बहुत जो recent काम था उनका वो था, एक था टाइगर में जहाँ पे वो सलमान खान के बॉस बनते हैं. So गिरीश कर्नाड. So वो मेरे फ्लाइट पे थे and that flight was from Bangalore to Trivandrum. So that time I was flying out of Trivandrum. तो ट्रिवेंड्रम से दो ही डोमेस्टिक फ्लाइट होती थी, एक दिल्ली के लिए एक बैंगलोर के लिए. तो वहाँ पे थोड़े चांसेस होते थे कि जहाँ पे कोई आपको सेलिब्रिटी मिल जाए. सो इट वॉज दैट फ्लाइट एंड वो मेरी फ्लाइट पे थे. वेरी हम्बल, वेरी स्वीट गाय, मतलब बहुत ही अच्छे से बात, बहुत कहते हैं एक सौम्य तरीके से कोई जो बात करता है. सो ही वॉज दैट पर्सन एंड मैंने देखा एंड आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड टू सी हिम. इट वॉज लाइक फर्स्ट सेलिब्रिटी आई वॉज एक्चुअली सीइंग हिम इन पर्सन. और मैंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. और क्यों खिंचवाई, उसका मेन रीज़न ये था बिकॉज ही वॉज सो स्वीट, ही वॉज सो संबल, ही वॉज सो हम्बल. ठीक है, तो मतलब फोटो क्लिक करवानी ही थी इतने प्यारे इंसान के साथ. सो आई गॉट अ पिक्चर क्लिक एंड ही वॉज वेरी स्वीट एंड या, सो दैट वॉज इट वॉज अ स्मॉल फ्लाइट बट इट वॉज स्वीट इंटरेक्शन विद हिम. एंड या, दैट वॉज नंबर वन सेलिब्रिटी आई हैव फ्लोन विद. दूसरे सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने फ्लाई किया है उनका नाम है शशि थरूर. वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे और मैं इकोनॉमी में काम कर रही थी. तो it was a domestic flight, of course, and again it was from Bangalore to Trivandrum or Delhi to Trivandrum. So it was one of those flights and वो आगे बैठे हुए थे and I had no clue that he is traveling with us because क्या होता है ना, बोर्डिंग के टाइम पे जो भी बिजनेस क्लास का पैसेंजर वो आगे आके बैठ जाता है, जो पीछे का क्रू है वो तो बेचारा पीछे लगा हुआ है ना बोर्डिंग वगैरह करवाने में. तो कभी कभार आपको पता भी चलता है कि ओ दैट सेलिब्रिटी इज ट्रैवलिंग, और वो डिप्लेन भी हो जाता है और उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि ओ दिस पर्सन वॉज देयर ऑन माई फ्लाइट. सो इट वॉज लाइक दैट. तो मैं फॉरवर्ड में कुछ काम के लिए गई एंड देन आई सॉ माई आई एफ ई लाइक इन फ्लाइट एग्जीक्यूटिव, लाइक द सीनियर मोस्ट क्रू जो फ्लाइट हेड कर रहा था. ही वॉज सिटिंग ऑन हिज नीज एंड ही वॉज लाइक लिसनिंग टू दिस पर्सन एंड आई वॉज वंडरिंग, क्योंकि मैंने वो पीछे सीट के पीछे, मतलब पीछे से मैंने देखा तो मुझे पता नहीं चला कि कौन बैठा हुआ है. एंड ही वॉज लाइक बहुत ही ध्यान से बातों को सुन रहा है, जैसे कोई गुरुदेव कुछ ज्ञान दे रहे हैं. ही वॉज लिसनिंग
एंड देन जब मैंने देखा तो इट वॉज शशि थरूर एंड आई वॉज लाइक ओह वी हैव एंड यू नो अगेन ही इज अ बिग पर्सनैलिटी, कम ऑन एवरीबडी नोज हिम. सो आई वॉज लाइक, मैं थोड़ा सा एकदम से मैं ऐसे होकर शॉक होगी कि अरे ये कौन, अरे ये कैसे कहा. सो तो इंटरेक्शन करने का मन था, पर मैं तब करती जब अगर मेरे आए भी थोड़ा हमें थोड़ा स्पेस देते बात करने के लिए. बट देन उसके बाद मैंने उनको देखा, मैं गई गैली में जो मुझे सामान लेना था, मैंने वो सामान लिया और मैंने बस स्माइल किया एंड देन मैं पीछे चली गई. क्योंकि वो अब मैं चाहती नहीं थी कि उनका एक दे वर हैविंग अ नाइस कॉन्वर्सेशन. एक और जो चीज़ थी उन दोनों में कॉमन, इससे वो दोनों केरला से थे, तो वो एक कॉमन चीज़ था. तो उनको ना, तो आई वाज लाइक कि ठीक है फाइन, करने दो बातें, गप्पे शप्पे करने दो. तीसरी सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने फ्लाई किया था उनका नाम है चेतन भगत. जी हाँ, उन सबकी बुक हम सब ने पढ़ी हुई है, मतलब मैंने पढ़ी हुई है. आई थिंक रेवोल्यूशन 2020 आई हैव रेड and I can't remember, but I have read like 2-3 books तो मैंने पढ़ी हुई है उनकी. 2 states I have read, yes, 2 states मैंने पढ़ी है, और एक और मतलब ऐसे करके मैंने 2-3 बुक्स उनकी पढ़ी हुई है. सो आई नो दिस पर्सन एंड वो नजबलिए में भी आए थे, तो सबने उनकी शक्ल भी देख रखी है. अगर जिन्होंने नहीं देखी, जिन्हें नहीं पता है कि कौन है वो, हाउ डज ही लुक लाइक, सो अगर आपने नजबलिए देखा हो तो उनके जज थे वो. सो वहाँ पे देखा ही है लोगों ने. सो ही वॉज देयर ऑन माई फ्लाइट एंड वो फ्लाइट थी बैंगलोर से दिल्ली तक के लिए, और अब मैं दिल्ली से फ्लाई करने लग गई थी. सो मेरा बेस चेंज हो चुका था और मैं दिल्ली से फ्लाई करी थी. सो ही वॉज ऑन माई फ्लाइट, आई वॉज वर्किंग इन द बिजनेस क्लास एंड मैं नॉर्मली मैंने कहा ओ चेतन भगत इज देयर. I go nice. मैंने बुक पढ़ी हुई है, so I know him. Like you know, okay fine. Like it's just like you feel like okay, I know this person, I know this guy, you know. And मैं boarding चली थी उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा cabin set करी थी. You have to close the overhead bin, you have to adjust the bags, अगर you know, so that other people can keep their bags. You have to make space for the bags and all of that. So I was doing that in the cabin. And this person was sitting on his seat. उन्होंने अपना tray table निकाला और उन्होंने अपना टिफिन बॉक्स खोला, और टिफिन बॉक्स के अंदर था पालक पनीर, अचार. अचार इतना टेस्टी लग रहा था देखने में. पालक पनीर वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी डिलिशियस. खाने कैसे मन कर रहा था कि मैं खा लूँ. तो बहुत स्वादिष्ट खाना था उनके टिफिन के अंदर जो उन्होंने खाया. एंड पराठे भी थे एंड आई वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, एज इन लाइक यू नो, लाइक ही सिटिंग हियर एंड आई वॉज स्टैंडिंग हियर. ठीक है, एंड लाइक आई वॉज ड्रूलिंग. आई कांट टेल यू, मेरे को इतना मुंह में पानी आ रहा था, मुझे इतनी भूख लग रही थी. बिकॉज it was a 4 sector flight what we did that day. It was Delhi, Bangalore, 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 Delhi. तो 4 सेक्टर की फ्लाइट थी और that sector was the last sector. And of course we ate. ऐसा नहीं कि हम पूरे सेक्टर भूखे रहे, लेकिन वही था ना कि बहुत लंबा सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है, पूरा दिन निकल गया है, दिन खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट. एंड देन कोई अगर ऐसा कुछ इतना टेस्टी खाना, घर का खाना खा रहा हो, स्पेशली जब आप फ्लाई करते हो ना, तो आपको घर का खाने की बहुत याद आती है. सो मैंने कहा यार ऑफर ही कर दो भाई. पर उसने नहीं किया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चली गई आगे, है ना. और मैं अपनी जंप सीट पे बैठ गई, सर्विसेज हो गई एंड शाम का टाइम था जब हमने टेक ऑफ किया. फिर रात हो गई, यू नो, क्योंकि इट वॉज बैंगलोर से आई थिंक 2.5 hours की फ्लाइट है. सो करते करते तब तक शाम हो गई, शाम से रात हो गई. एंड आई वॉज सिटिंग इन द गैली एंड वो सब. तो देन एक क्रू थी पीछे से इकोनॉमी से एंड शी केम फॉरवर्ड एंड आई वॉज लाइक, आई टोल्ड हर, मैंने कहा यू नो व्हाट, चेतन भगत इज देयर ऑन आवर फ्लाइट. सो शी वॉज लाइक रियली चेतन भगत. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा गो, ही सिटिंग वहाँ पे जाके जाओ. बोले बिकॉज शी सेड कि आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद हिम. मैंने कहा हाँ गो एंड आस्क हिम, ही इज़ वेरी स्वीट. मतलब देखने में, बात करने में तो ही इज़ वेरी स्वीट. गो एंड आस्क हिम, आई एम श्योर कि वो मना नहीं करेंगे. शी वेंट इन द कैबिन, देन शी केम बैक. ऐसा लाइक कि मैंने कहा व्हाट हैपेंड, मना कर दिया उन्होंने. शी इज़ लाइक कि नहीं मना तो नहीं किया, मैंने पूछा ही नहीं. मैंने कहा क्यों. बोले एक्चुअली आई डोंट नो हाउ डज इट लुक लाइक. मैंने कहा, मैं मन में सोच रही हूँ बहन तो एक्साइटेड क्यों थी किसी चीज़ के लिए. व्हेन यू डोंट नो द पर्सन, व्हेन यू डोंट नो हाउ डज इट लुक लाइक, you just you know the name, there is an author called Chetan Bhagat, but you don't know how does it look like. And I was like, okay, fine, कोई बात नहीं, I'll go and I'll speak to him. I went up to him, I asked him, Mr. Bhagat, if you don't mind, we want to click a picture with you. So he's like, okay, yeah, sure. And he came in the galley वहाँ पे and मेरे crew के साथ मैंने फोटो खिंचवाई. And then he's like, you said you wanted to click a picture with me. मैंने कहा हाँ. मैं कहा चलो मैं भी खिंचवा लेती हूँ, मैं तो पढ़ी है बुक, मुझे तो पता है कौन है ये. सो आई लाइक, बट ही वॉज वेरी स्वीट, है ना. एंड जब मैंने फोटो खिंचवाने लगी ना, तो ही इज लाइक नहीं इधर से नहीं लाइटिंग अच्छा है, नहीं इधर से लाइटिंग. आई वॉज फीलिंग लाइक यू नो एज इफ आई एम अ सेलिब्रिटी एंड ही इज गेटिंग अ पिक्चर क्लिक विद मी. सो विच वॉज वेरी क्यूट एंड ही वॉज वेरी स्वीट. अगेन ही वॉज वेरी स्वीट एंड हम्बल. बस मैं खाना ऑफर नहीं किया, उसके लिए मैं नाराज रहूंगी भगत जी आपसे.
बट ऑल इन ऑल द फ्लाइट वॉज वेरी नाइस, ही वॉज वेरी नाइस विद अस। फोर्थ सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने फ्लाई किया है उनका नाम है राजीव कपूर। सो राजीव कपूर इज द एक्टर फ्रॉम राम तेरी गंगा मैली। अगर आपने देखी, मैंने बहुत बार देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है मूवी। गंगोत्री दिखाया वहाँ पे भाई हमारा, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है मूवी। सो उसमें जो हीरो थे वो राज कपूर जी के तीसरे बेटे, सबसे छोटे बेटे, सो ही इज द वन। सो वो पुणे से ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली तक, आई थिंक पुणे दिल्ली था या दिल्ली पुणे, ऐसा कुछ सेक्टर था। सो ही वॉज देयर एंड अगेन आई वॉज वर्किंग इन द बिजनेस क्लास एंड मैंने ऐसे देखा जाके एंड मैं एकदम से पहचान, क्योंकि मूवी मैंने इतनी बार देखी है ना दैट आई नो हिम। तो आई वेंट टू माई, आई वाज लाइक यू नो राम तेरी गंगा मैली के हीरो है। He was like, oh हाँ, उन्होंने भी देखी हुई थी। तो it was not like, you know, somebody like, what are you talking about, girl? I don't know what you're talking. I only know about Game of Thrones. You know, it was not like that. She knew that what I'm talking about. So I was so happy कि चलो बहन। सो फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा फोटो खिंचवानी मुझे इनके साथ तो खिंचवानी मुझे फोटो। सो मैं गई उनके पास, आई रिक्वेस्टेड उनके, सर इफ यू डोंट माइंड। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि डांट देंगे, क्योंकि इतने बड़े हैं ना उम्र में थे वो, तो मुझे लगा कि डांट वाट ना दे। मैं कहा if you don't mind can I take a picture with you? So he's like very sweet. He's like yeah sure. It was like मुझे लगता है तीनों जो रणधीर कपूर हैं, ऋषि कपूर थे, ये तीनों की बात करने का तरीका ऐसा है, शो। So it was like I'm talking to one of them, you know. So then he came in the galley and he was very kind. मैं उनके साथ एक पिक्चर क्लिक करवाई and he was very sweet. He's like God bless you and then he went back to his seat, which is very sweet. तो हाँ, पांचवी सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने फ्लाई किया है वो है MS धोनी। यस, धोनी। एंड I don't have a picture with him. Why I tell you? So it was a Bombay Delhi flight, okay, and I was again working in the business class. On ground बहुत भाषण होती है, ठीक है। आपको मतलब हमारे यहाँ पे हॉट टाल्स करो या कोल्ड टाल्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, न्यूज़पेपर, मेन्यू कार्ड्स, वेलकम बेवरेज, सॉक्स, आई मास्क, दिस दैट, कैंडीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। सो आई वॉज लाइक यू नो juggling with everything in the galley, and this person he entered the aircraft. I think he was the last person, so I think भाग के वो आए और एकदम से वो, मैं कुछ कर रही थी and he came and he was like hi, and मैंने पीछे में मैं कहा hi, and then I did not, oh my god it's MS Dhoni। मैंने कहा because it was like मेरे दिमाग को रजिस्टर करने का टाइम नहीं मिला। और मैं कहा फिर देन ही वाज लाइक, ही वाज वेरी स्वीट। मतलब वो जो होता है ना, वो कुछ सेकंड्स का जो था हमारा इंटरेक्शन था, बट उससे मुझे पता चला कि ही इज वेरी हम्बल स्वीट गाय, ओके। एंड देन ही वेंट टू हिज सीट एंड मैंने कहा क्या हुआ मेरे साथ अभी, एंड आई टोल्ड माय वी हैव महेंद्र सिंह धोनी ऑन आवर फ्लाइट। He was like, he was also a big fan, so you know he went up to him and then उनसे बात की कि सॉरी, वो जो भी बात की, I don't know what conversation he had. Then he told him that I'm very tired, so I will be sleeping throughout the flight. So if you don't mind, please don't disturb me for anything. I don't want anything. Just water bottle दे दो। तो I was like, मैं लेके जाऊँगी water bottle तो मैं ही लेके जाऊँगी। I took the water bottle, I gave it to him. He was very nice. He was like, thank you, and then बेचारे सो गए। So throughout the flight he was sleeping. But while deplaning also he was very sweet. Like thank you and very sweet. You know, not like I'm a celebrity, I'm a great cricketer, and you know everybody knows me. No such attitude. He was very grounded and very nice. Next celebrity जिनके साथ मैंने fly किया है वो है माधुरी दीक्षित। Yes. So she was there on my flight, and I was working in economy. I was not working in the business class, and of course she was sitting in the business class. So मैंने बस उनकी एक झलक देखी, and I was like, oh my god, Madhuri Dixit there is on flight. Madhuri Dixit is there on our flight, and I was very excited to see her. She's beautiful. She's an amazing dancer, actor. So yeah. So I saw her and she was reading the newspaper like this. इस तरीके से, मतलब ऐसे newspaper कौन पढ़ता है? जैसे मैं जो समझती हूँ, शायद वो चाहती थी कि कोई ना देखे कि she is there on the flight. So I was like, okay fine. She was reading the newspaper like this, and उन्होंने चश्मा पहन रखा था। दिन का टाइम था तो लाजमी है, तो ओके फाइन। मैं आसपास ऐसे घूम रही थी कि nice, I will go and I will see if I get time, I will try to talk to her and you know tell her that you know she is so amazing and all of that. I think they deserve the compliments if they are so good at it. So I think
as an audience, whenever you get the opportunity, you should tell them that what you feel about them. So I was thinking to do that, but फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन खट्टा हो गया, मेरा मन ही बदल गया कि मैंने कहा नहीं, मैंने जाना, छोड़ो, जाने दो, काम करो चुपचाप जाके। तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ी थी तो देयर वाज अनदर गेस्ट, ठीक है, ही वाज आल्सो सिटिंग इन द बिजनेस क्लास। ही सॉ हर, ऑफ कोर्स फैन, बिग फैन, कौन नहीं है माधुरी दीक्षित का। So he came up to her and she was reading the newspaper like this, and he was like, "Hello, ma'am. Can I click a picture with you?" And she was like, "No." मैंने कहा अगर मैं जाऊंगी तो मुझे क्या कहेगी, निकल यहाँ से। मतलब आई डोंट नो, मुझे वो बहुत ऑफ लगा, मतलब वो आई डोंट नो, ठीक है, हो सकता है बहुत टायर्ड हो, देयर आर XYZ reasons, you are human at the end, not necessarily every day you are at your best mood. So I understood, like I'm not judging it, but then I don't know, मेरा मन नहीं हुआ उसके बाद जाके कि मैं उनसे बात करूँ, उनको बोलूँ कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है, हालांकि माधुरी दीक्षित was there, but I was like कि नहीं, it's okay, I better go back to my cabin and work because I'm getting paid for that, so I should better do that. Next celebrity जो मेरे फ्लाइट में थे, एक्चुअली दो सेलिब्रिटी जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक थे मनोज वाजपेयी एंड दूसरे थे संजय कपूर। सो ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे थे, और एक और थे। तो जो एक मूवी आई थी बीच में सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर की, और जिसमें मनोज वाजपेयी भी थे, जिसका नाम था टशन, नहीं, टी से नाम था ना, मैं I'm trying to remember what was the name of the movie. तेवर, yes, it was तेवर। तो तेवर के आई थिंक प्रमोशन के लिए वो गए थे दुबई, एंड या आई डोंट नो व्हाट। सो वो लोग वापस आए थे, एंड उस फ्लाइट में यस उनके उस मूवी का डायरेक्टर भी था। सो ये तीन लोग ट्रैवल कर रहे थे, एंड अगेन दे वर ट्रैवलिंग इन द बिजनेस क्लास, आई वाज वर्किंग इन द बिजनेस क्लास। सो दे वर कमिंग बैक टू दिल्ली, सो दैट वाज द सेक्टर व्हाट वी वर ऑपरेटिंग। So on ground we are supposed to do the welcome beverage, मतलब welcome drinks. तो हम ऑफर करते हैं which are non-alcoholic drink. It was an international sector, so of course we were supposed to serve the alcohol after takeoff, not before that. So on ground non-alcoholic drink we are supposed to serve. So when I went up to Manoj Bajpayee, ठीक है, and I was like, I was offering him the welcome beverage. So of course he read my name. I was wearing a name tag. So he was like, Nirupama, Nirupama, can you give me a glass of champagne, please? So I was like, certainly, sir. I will do that once we take off. So he was like, he started laughing. Then I went. Then again, when I came for something, he's like, Nirupama, where is my champagne? मैंने कहा भाई दे दूंगी मैं शैम्पेन, क्या हो गया है? मतलब ही इज एन outstanding actor, no doubt about it, but he was like so fixated on that कि I want champagne. And I was like, sir, I will serve you, don't worry, मैं घर लेके नहीं जाने वाली हूँ, तो थोड़ा थामा। He was like again, Nirupama, remove. But it was not irritating me because he was very sweetly, he was saying, Nirupama, when are you going to serve me the champagne? I was like, sir, I will serve you. So after takeoff, सबसे पहली चीज जो मैंने किया was to serve him. Like once the seatbelt sign was off and everything, so I served him a glass of champagne, and he was very happy. थोड़ा सा खाना खाया and then he slept, ठीक है। And दूसरे जो थे हमारे महाशय संजय कपूर, oh God, so finicky he was on the flight. ये क्या खाना है, ये क्या है, मैं नरेश को बोलूँगा। नरेश was the founder of the company, नरेश गोयल, मिस्टर नरेश गोयल। मैं नरेश को बोलूँगा ये क्या पता नहीं। स्टार्टर्स में जो एपेटाइजर था, तो इट वॉज some aloo tikki, not aloo tikki, but it was something like aloo chaat, something like that. थोड़ा बनाया था क्योंकि the timings were such. So it was not like day and night. It was just according to the timing. It was appetizer and the main course. He was like, ये क्या बनाया है? ये मेन कोर्स में क्या है? ये क्या है? इतने नुक्स निकाले और 2 कैसरोल खा गया। मतलब मैं जज नहीं कर रही तुम्हें कि तुम इतना खाना खा रहे हो, बट एटलीस्ट तुम्हें नुक्स निकाले हैं। अगर मुझे कोई खाना लिटरली में अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। ही वॉज ओनली जस्ट लाइक ये कैसा क्या है, वो कैसा है, मैं नरेश को बोलूँगा, ये वो है। मतलब ऐसे हमारे फ्लाइट पे बहुत आते थे लोग कि आई नो नरेश गोयल, आई विल कंप्लेन टू नरेश गोयल, ऐसे बोलने वाले। बट आई टेक हिज वर्ड्स, वो जानते होंगे, आई मीन श्योर, बिकॉज दे आर लाइक फ्रेंड्स,
Anil Kapoor and Sonam Kapoor and Shabana Azmi and all of that. So okay, fine, I take your words. All right, you know Naresh Goyal, go and tell him. Tell him कि crew meet भी बदल देना थोड़ी सी. तो while we were deplaning, तो Manoj Vajpayee was very sweet to us, to me, to the crew. तो and he's a great actor. तो मैंने कहा इनके साथ तो फोटो खींचनी बनती है. तो जैसे वो डिप्ले रहा था मैंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू. ही वाज लाइक ऑफ कोर्स कम 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 कम. और इतने स्वीटली बोला यार, मतलब फिर तो यार बनती है ना एक पिक्चर, है ना. सो आई गॉट अ पिक्चर विद हिम. आई वाज लुकिंग हॉरिबल. लेट मी पुट इट दैट वे. आई वाज लुकिंग हॉरिबल. ठंड का मौसम था, 3 डिग्री तापमान होगा दिल्ली में, ठीक है, और सुबह के 3 या 4 बजे होंगे जब हम लैंड किए थे. सो आई वाज लुकिंग हॉरिबल. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिफोर यू राइट इन द कमेंट सेक्शन. I'm telling you, I know I was looking horrible. Next celebrity, the sweetest, Mr. Milkha Singh. Oh my God, he's so sweet. मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ फ्लाई करके. He was so sweet, so humble, so down to earth. मतलब बहुत ही प्यारे इंसान ना. एंड वो उन्होंने मतलब जब टेक ऑफ, ऑफ कोर्स वी वर देयर. आई वाज लकीली वर्किंग इन द बिजनेस क्लास, सो ही वाज देयर. एंड वो गैली में आए एंड और भी जो क्रू थे, 2 क्रू और थे, सो ही वाज टॉकिंग टू अस. उन्होंने एक और चीज़ कही जो मुझे बहुत स्वीट लगी, बहुत अच्छी लगी, मेड मी फील सो गुड अबाउट माई जॉब एंड माई सेल्फ. तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी एयर होस्टेस बनना था. तो फिर उन्होंने काम किया एयर इंडिया के साथ 4 साल के लिए, फिर उनकी शादी हो गई. सो दैट मेड मी फील सो गुड अबाउट माई, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से अ लॉट ऑफ शिटी थिंग्स अबाउट आवर जॉब, दिस प्रोफेशन, कि ऐसा है वैसा है, अच्छा जॉब नहीं, सेफ नहीं है, ब्ला 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 ब्ला. बट दिस पर्सन, मतलब इस ओहदे वाला इंसान, अगर उन्होंने अपनी बेटी को ये करने का मौका दिया, सो आई थिंक ये मतलब मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. सो दैट वाज वेरी स्वीट. एंड वो बड़े अच्छे कि गॉड ब्लेस यू बच्चा सबको बोला कि आप लोग सब ध्यान रखें. तो उनके साथ तो ऑफकोर्स मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई, एक सेल्फी ली, और उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया सबको लिख लिख के. तो इट वॉज वेरी स्वीट. नेक्स्ट सेलिब्रिटी जो मेरी फ्लाइट में थे वो थे आमिर खान. जी हाँ, आमिर खान उनकी श्रीमती के साथ, किरण राव के साथ थे, और वो उस टाइम पे पीके की प्रमोशंस के लिए दिल्ली आ रहे थे. तो बॉम्बे से टू दिल्ली फ्लाइट थी. अगेन इट वाज अ बिजनेस क्लास एंड आई वाज वर्किंग एज अ R3. R3 इज लाइक, जो मेरे क्रू अगर देख रहे हैं तो तुम्हें पता है कि मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मुझे डिवाइडर पे खड़ा था होना था, ठीक है. सो जब मैंने उनको देखा मैंने कहा ओ माय गॉड, आमिर खान, आमिर खान, आमिर खान, आई वांट टू क्लिक पिक्चर बिकॉज आई लव हिम. Okay, is I love him. I'm not crazy about any hero or any celebrity, but I love their work, what they do on screen. So I just love that. Okay, so I have huge respect for his work. ठीक है, he's an amazing actor. So I had to get a picture click. And पहली बार ऐसा कोई था कि कोई खान ट्रैवल कर रहा था मेरे साथ, तो I had to. But मेरी किस्मत और मेरे काम के प्रति मेरी शिद्दत, उसकी वजह से मेरी फोटो नहीं क्लिक हो पाई. क्योंकि मेरा काम था कि आई वॉज सपोज टू स्टैंड ऑन अ डिवाइडर, इट लाइक समवेयर वेयर आई वॉज फार फ्रॉम हिम, ठीक है. एंड थ्रू आउट द फ्लाइट ही वॉज स्लीपिंग, ठीक है. सो आई डेंट वॉन्ट टू disturb him then. So I thought maybe later I will go up to him and I will ask him, maybe while deplaning and but वो हो नहीं पाया. उस फिल्म में एक कोई कैरेक्टर जिसने प्रीस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था, तो ही वॉज देयर. ही मतलब द एंटायर टीम यू कैन से वॉज ट्रैवलिंग with us, ठीक है. तो they were sitting on the business class. This person like बिजनेस क्लास के लास्ट सीट पे शायद बैठे होंगे, एंड आई वाज स्टैंडिंग राइट देयर. तो एक डिवाइडर होता है इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के बीच में, एक डिवाइडर होता था कि पहले यू विल एंड वन क्रू यूज्ड टू स्टैंड देयर सो दैट फर्स्ट business class passengers can deplane, and then once everybody has deplaned then the economy will deplane, like that. अगर दोनों दरवाजों से deplane नहीं हो रही है तो. I was standing right there. So he was like, okay, so how's the weather in Delhi? I'm like, it's very cold, it's very chilly. I hope you're carrying all your warm clothes. मतलब बहुत स्टाइल मारी थी वहाँ पे. ऐसा नहीं कि जाऊँ मैं बोलूँ कि भाई रुको, वेट, लेट मी गो एंड क्लिक द पिक्चर विद हिम, लेट मी स्पीक टू हिम. बट वो हो ना पाया क्योंकि बाय द टाइम मैं उस दरवाजे तक पहुंचती, उनके पास पहुंचती, वो डिप्लेन हो चुके थे. मेरी आंखों के सामने वो जा चुके थे. मैंने कहा बाय, किस्मत में कभी रहा तो तुमसे फिर मुलाकात होगी. इवन माई हस्बैंड टेल्स मी कि व्हाट इज दिस, व्हाई डिडंट यू गेट अ पिक्चर क्लिक. मैंने कहा यार मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, एंड दैट इज वन थिंग विद मी, दैट आई एम वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क, वट एवर आई डू, सो आई एम वेरी डेडिकेटेड. तो ये एक फ्लॉ लगा मुझे उस दिन खुद में कि मैंने क्यों नहीं ये डिवाइडर से. क्या हो जाता अगर इकोनॉमी का गेस्ट बिजनेस क्लास के गेस्ट के बीच में आके निकल जाता, क्या हो जाता, कुछ नहीं होता.
पर मैं बुद्धू सी ना, और मैंने सोचा कि शायद वो इंतजार करेंगे। मैंने बोला भी अपने आईपी को, प्लीज उसको रोक के रखना, बोलना हमारी एक क्रू है, उसको फोटो खिंचवाई तुम्हारे साथ में। बट नहीं बोला उन्होंने। Next celebrity and the last celebrity for this video. So I will be making a part 2 of this because I have 10 more celebrities to talk about, and this video is already so long, so I don't want it to be like too long. So इसलिए ये last celebrity है आज के वीडियो के लिए, और इनका नाम है चंद्रचूड़ सिंह। तो अगर आपने वो मूवी देखी है, मूवी तो याद नहीं मुझे, माचिस थी मूवी वो, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, आनी मानी। सो बेसिकली उस गाने में जो हीरो थे, दैट्स द पर्सन। सो ही वॉज ट्रैवलिंग विद अस इन इकोनॉमी, ठीक है, ही वॉज सिटिंग इन इकोनॉमी, आई वॉज वर्किंग इन इकोनॉमी, आई वॉज वर्किंग एज इकोनॉमी इंचार्ज, एंड वो कैबिन में बैठे हुए थे। तो आयल सीट पे थे, और मैं ऐसे आई वॉज जस्ट टेकिंग अ वॉक इन द कैबिन। द एयरक्राफ्ट वॉज ऑन ग्राउंड एंड बोर्डिंग हो चुकी थी, और एयरक्राफ्ट मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ऐसा होता है कि कोई मतलब क्लियरेंस नहीं मिलता टेक ऑफ के लिए या लैंडिंग के लिए। सो समटाइम द एयरक्राफ्ट इज वेटिंग टू टेक ऑफ और फॉर लैंडिंग, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो बहुत एजिटेट कर देता है पैसेंजर्स को। एंड इसलिए मैं ज़्यादा कैबिन में नहीं जा रही थी, क्योंकि कोई पकड़े व्हेन द एयरक्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, व्हाई द एयरक्राफ्ट इज नॉट टेकिंग ऑफ, तो आई डिडंट वांट टू बी द टारगेट। सो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं घूम रही थी। बट जब मैंने एक वॉक लिया, मैंने कहा इट्स हिम। मतलब आई नो एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, एवरीबडी आई नो, चाहे उन्होंने एक फिल्म भी क्यों ना की हो, आई नो दैट पर्सन। सो आई सॉ हिम एंड ही इज अ गुड एक्टर, इज नॉट कि इज बैड, ही इज अ गुड एक्टर। सो ही वाज देयर इन दैट मूवी ऑल्सो। क्या है, साइलर रे क्या बोला फिर बोल रे, कौन सी मूवी थी, जोश, उसमें था, हाँ उसमें भी थे वो, राइट। ऐश्वर्या कपूर के, कपूर नहीं है, ऐश्वर्या राय के साथ पेयर किया गया था उनको। सो या ही इज द वन। तो ही वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज लाइक यार, ओ इट्स हिम, नाइस। जाके बात भी कर ली थी मैं, बट क्योंकि सब के दिमाग इतने बॉयल हो चुके थे बिकॉज द एयरक्राफ्ट वाज नॉट टेकिंग ऑफ, इसलिए मैं चुपचाप अपनी सीट पे बैठी रही और चुपचाप से काम किया। अगेन दैट फ्लाइट वाज बॉम्बे दिल्ली। That's what I'm telling you guys. If you want to meet more celebrity and once you start flying, fly out of Bombay. क्योंकि you come across a lot of celebrities when you fly out of Bombay. दिल्ली वालों को, मतलब एटलीस्ट मुझे तो मेरी किस्मत बड़ी ऐसी थी, बट येस फिर भी आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ गुड पीपल, गुड ह्यूमन बींग, आई वुड से दैट, बिकॉज दे वर वेरी नाइस। इतना आपको रुतबा होने के बावजूद भी आप में इतना सा भी अगर गुरु नहीं है, घमंड नहीं है, हाँ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे वैसे हो जाते हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स हाउ लाइफ इज, इट कैन बी गुड ऑल द टाइम. So yeah, that's pretty much it about this video. I will be making part 2 of it because I have to share more stories with you, experiences with you all. So make sure you stay tuned to my channel. Make sure you subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that when I upload the next video, you get the notification. And if you like this video, make sure you like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. That's all for today. I shall see you in my next one. Take care.